subquery, right? Subquery is nothing, like it's just a query, SQL query, normal SQL query. How you write a SQL query with the select, right? Just it is used inside another SQL query, or maybe subquery. See here in this diagram, I'm just going to directly to this diagram. Suppose in these three circles, if you see there is a inner circle, right? This is subquery. It is one. Okay, sometime you may use many subqueries inside and outer queries. So for this particular subquery, this become outer query, and for this subquery, this may become outer query, right? Understood? Like we cut till now we used only two subquery, then this result will come to there and it become outer query, and then we get the final result. But here, if you see like this way, I have given like this, there can be many subqueries, maybe three subqueries also in one like SQL query itself. Suppose subquery one we are getting something, then here we are getting something, then we are getting some final output. Okay, so subquery is called also inner query or inner select. Okay, leave inner select, inner query only, remember inner select is fine, inner query. Okay, or inner select, why we tell inner select? Because subqueries start with select na, right? Select star, so that's why, and it is inside that this outer query. Okay, so a subquery must be enclosed with parenthesis. Okay, just yesterday I was telling, right? Parenthesis, this one inside. Okay, always a subquery may occur in a select clause. Select में भी हम लोग subquery लिख सकते हैं, from clause. So the same thing I am writing here, and where clause. Okay, select clause, from clause and where clause. Where में भी हम लोग लिख सकते हैं, and from के बाद भी as a table भी हम लोग subquery लिख सकते हैं कि from table की जगह उसमें subquery लगा दिया. ठीक है? The subquery can be used inside a select, insert, अपडेट, डिलीट के टाइम भी हम लोग सबक्वेरी यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज सबक्वेरी टू सिलेक्ट, insert, update and delete. It's not only the subquery to just to get the file result outcome. It may be you can use subqueries sometimes for inserting also. Mostly inserting we use subqueries. I'll go through those examples. Then a subquery is usually added within the where clause of another SQL select statement. Where में mostly use होता है, but ठीक है, from में भी बहुत सारा बार use होता है, and then select में भी use होता है. You can use comparison operators such as less than, greater than, or equal to, in, ये सब. Okay, the inner query executes first before its parent query. So this is nothing but inner query. This may be a parent query, this may be child query. So inner query, so forget about parent child now, parent child query. So this is only called parent query. Okay, so that the result of an inner query can be passed. So I'll just modify this way. The inner query executes first before its outer query, so that the result of an inner query can be passed to the outer query. Okay, to execute the outer queries, whatever you have written the query, to execute that with the help of the result set found based on inner query or subquery. Understood something? Yeah. Yes. Okay, let's go to next page. Then here comes subquery can be divided into below types. There may be such three kind of subqueries: scalar subquery, multiple row, okay, correlated subquery. So scalar subquery is nothing but always return. That means subquery means what? We are discussing about this part, like not entire query part, only this part. This is called subquery, which Sub. is used in a outer query. Like as a whole, it's a SQL query, but here two part is there. This is outer query, this is inner query or subquery. So we are discussing about this inner subquery. Okay, so it can be, and how we are deciding these things, three types based on the outcome and result of this subquery.
So if your subquery is giving a specific result, based on that result we are defining if it is a scalar subquery, multiple row subquery, or correlated subquery. Suppose here your subquery is returning what? One column and one row. That means one data point only. That is called scalar. So scalar means always return one row and one column, not or. Okay, and that means both should be met. One row and one column. That means one data point only. One row, one column. So we can use scalar subquery in many places. Okay, this can be used in select also, where also like that. So this is called scalar. Okay, if suppose you are checking same thing in select distinct manager ID or manager ID from manager data table. Okay, this thing we have no need. So this is also where I'm not employee salary manager ID. Okay, so this is also, if you see this result, insight result is giving you what? Multiple row. One Only column, return one single column and multiple rows. multiple rows. Find department which doesn't have any employee. These are examples. Okay, such kind of questions like we use. Return only single column and multiple Column. rows. Single column and multiple rows. This is called multiple row query, subquery. Okay. Okay, Hmm. multiple row subquery or multiple row inner query. So there's another way, return multiple column and multiple row. Okay, that also is possible. Suppose manager name we have given, then manager ID. So here also you need to give manager name. Name. No, employee name. Because we do not have here a manager ID, so we have to create that inner join. Okay, so employee name. Let me check employee name. If someone in employee is also manager, that time you will get those things, and then you have to give it in bracket. What was that column name? So I'm just giving an example. In such scenarios, you will get EMP. two, right? Two. Two column rows. So if there is multiple column, multiple row, then it is called also multiple row subquery. Returns multiple column, multiple row. Find the employee who earn highest salary of each department. So you need department and salary, both column, right? Hmm. So max salary and department. So that is called multiple row. And correlation, correlated subquery is a tricky one. Mostly people, why don't you use this subquery? Because it takes some time to execute. It's like one-to-one kind of execution from subquery. Like it I told you, right, this needs to be executed first, then this executes. But in correlated, these are interrelated. To execute this inner query, yeah, right, in correlated also inner query only executes first, but to execute the inner query we need help of outer query as well. So that's why both runs. All together. That's why it is called correlated. Okay, so correlated words only sufficient, right, to define that. It is related to the outer query or main query. Outer query also called as a main query. Okay, just like subquery, main query, right? Subquery means inner query, and main query is also outer query. Suppose find the employee who earn more than the average salary for the department. That's fine. These are examples. Then correlated subquery runs for every single select in main query. So when the data is used, it will slow the query time. Okay, so remember, that's why mostly people, but correlated query solve many complex trick also, complex problems also. So that's why some like it is useful. It is not like that no one use it. It also get used, but it's taking some time. So people tend to use join or some other useful ways to get the result rather than correlated. Okay, each subquery result is executed once for every row in outer query. So each subquery result
is executed once for every row in the outer query. It connected, like interconnected. Or the result of inner query is interconnected with the outer query. Okay, so just let me, these are only subquery. Okay, so we'll go through practical. So why we need subquery at the first? First of all, why we need subquery? So go through. So suppose you have a table. Okay, you have a table. You need to find out average salary of this particular table, but you want to know who is the person and employee ID and manager ID. Give me the employee name and employee ID of the person who has salary more than average salary of the table. अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? नाना समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? Yes, got it. So tell me how you can achieve this question. You have any idea? सोच के बताओ. क्रिएटेड देन वाला साइन होगा कुछ, क्रिएटेड देन फिर ये वाला लगेगा, एवरेज सैलरी कर लेंगे. तो ये सब क्वेरी का हम लोग को जरूरत ही क्यों पड़ा? इसमें डायरेक्ट लिख सकते थे ना, एम्प्लॉय नेम. इसमें भी तो लिख सकते थे ना, ग्रुप बाय करके. नहीं लिख सकते क्या? एम्प्लॉय आईडी ऐसे भी तो निकाल सकते थे. या तो मैक्स सोचो, मैक्स निकालना, तो मैक्स का भी निकाल सकते थे कि मैक्स सैलरी मुझे दो और एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी दो और ग्रुप बाय में यूज कर लो. ग्रुप बाय में सो अभी क्या हुआ ग्रुप बाय में? ग्रुप बाय मतलब क्या है? ग्रुप बाय इज नथिंग बट बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम दिस पर्सन, इट इज गिविंग ए ग्रुपिंग. तो इसमें जितना था ना नाम, तो सबका एक एक ग्रुप कर दिया, तो इसीलिए मैक्स सैलरी सबका ही आ गया. ओके, तो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट यूज सिंपली सिलेक्ट टू गेट अचीव समथिंग. सपोज मैं एक दूसरा टेबल उठाता हूँ, और क्या क्या टेबल था? टेम्परेचर टेबल था एक, राइट? सेम चीज मैं इसमें लगाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम. ठीक है, सो सपोज मैं सेम ही देता हूँ, इसमें तुमको थोड़ा सा ग्रुपिंग का वो आ गया. सपोज मुझे चाहिए मिनिमम ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, फ्रॉम दिस टेबल. और मुझे सिटी का नाम भी चाहिए भाई, सिटी का नाम भी डाल देना मेरे को, किसमें मिनिमम है. तो अगर मैं ये रन करूँ, ये नहीं देगा ना, ग्रुप बाय करना पड़ेगा. तो ग्रुप बाय से क्या होगा? city. तो ये वो इंडिविजुअल सिटी वाइज दे रहा है कि भाई चेन्नई का मिनिमम कौन सा है. समझ रहे हो? Yeah. It is not giving actual minimum data. It's grouping the city and giving that. या बेस्ड ऑन Yeah. दैट पर्टिकुलर ग्रुप इट इज गिविंग हैदराबाद का मिनिमम जो भी है वैसा ग्रुप दे रहा है. बट व्हाट आई नीड द मिनिमम Minimum. available Data. temperature in the entire table, right? Yes. Similarly, I'll go through the temperature later. We had this one earlier, right? So we'll go through this. So average, suppose average. तो हमको एवरेज तो मिल जाएगा इससे, ग्रुप बाय की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रुपिंग करेगा उसको फिर. सो यू आर गेटिंग द एवरेज salary from the employee table. But what you need, give me the employee name and employee ID of the person who has salary more than average salary or in the table. Okay. अभी इसमें क्या है, जैसे
पहले इनर क्वेरी डाउन कर लो कि हाँ ये बोल रहे एवरेज सैलरी पूरा टेबल का, तो मुझे टेबल का एवरेज सैलरी मिल गया। इसके ऊपर भी आउटर क्वेरी लिखना शुरू करो। अब क्या चाहिए मुझे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम किधर से, इसी टेबल से ना, इसी टेबल से चाहिए। ओके, वेयर, ओके, एम्प्लॉय सैलरी था ना, और एक एम्प्लॉय सैलरी मतलब उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सैलरी इज मोर देन के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे। हम लोग बोला था ना पैरेंथेसिस के अंदर रहेगा सब क्वेरी, राइट? सब क्वेरी शुड बी इन पैरेंथेसिस। सो easy to understand, right? Easy to understand. See, we need employee name, employee ID from employee data based on what? Based on salary, right? If that person's salary, that individual salary. Suppose let me add here this also. And then we are comparing with this. What exactly is this? I'll show you. It is giving me 7714. So suppose Average select, employee salary, no? yeah, That is. select star from employee data where employee salary more than this. एम्प्लॉय डेटा हाँ, सो ये तो तुमको पता है, राइट? ये पता है तुमको, Yes. ये ऑलरेडी वी डिड, राइट? सेकंड क्लास में Yeah. कि भाई मेरे को कौन सा एम्प्लॉय का ज्यादा सैलरी है 7,000 निकाल के दो। सिंपली ये रन करते थे पहले। समझ आ गया? Nana, you understood, right? This you know, right? यस So same thing, यस because this average you are taking as a static value. So that means if someone inserts something or anything, then you will not get this average, right? This average is always changing in nature based on the change in table. अगर कोई डिलीट मार दिया, किसी का सैलरी इंक्रीज हो गया, someone salary got decreased, or maybe someone got deleted, resigned from that like employee table from the company, right? That time this value also will increase or decreased, right? So ये बार बार तुम जाके चेंज नहीं कर सकते हो ना इधर. So that's why we just make it dynamic. Key dynamically give me the average employee salary, whatever the change happen in the table, irrelevant of any changes. Just give me the average employee salary from the employee data table, and then compare this with this outer query. तो ये actually nothing but यही है. इसमें बस इसको हम लोग डायनेमिकली सब क्वेरी, इनर क्वेरी जो है ना, इनर क्वेरी के थ्रू वो नंबर को लेके आ रहे हैं ताकि हम लोग को बार बार ये चेक करना ना पड़े. गॉट इट? आ गया? फिर लेस देन लगाओगे तो सारे देखो सब 77414 के ऊपर है. लेस देन लगाओगे तो लेस देन वाला आ जाएगा. समझ आ गया ना? Yes. यस गॉट इट? क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड सब क्वेरी, and this can be achieved with the help of join also, but सब क्वेरी seems to be easy, right? In this case कि सिंपली लिख दिया और निकाल के लेके आ गए, एवरेज निकाला लेके आ गए. So now Yes. give me the employee name. So my question was, give me the employee name and employee ID for the person who has salary more than the average salary of the table. So we are discussing about this can be achieved through even join also. Okay, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे we have different ways to achieve our results. कुछ थोड़ा सा लंबा चलता है, कुछ थोड़ा सा जल्दी खत्म होता है, बट स्मॉल डेटा में तुमको ये पता ही नहीं लगेगा. जब बिग डेटा होता है, बहुत बड़ा डेटा होता है, डेटा सेट्स, तब थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट पता लगता है. सपोज फॉर एन एग्जांपल इन रियल लाइफ, टू गो टू योर होम, टू रीच योर होम फ्रॉम द स्कूल और फ्रॉम ऑफिस, देयर मे बी 3 or 4 रोड्स, राइट? नॉट ओनली सिंगल रोड, है ना? जैसे तुम जैसे Yes. गुड़गांव से आते हो अपने जनकपुरी, रही तो द्वारका से भी आ सकते हो, या तो तुम धोला को होके वो आउटर उससे भी आ सकते हो, है ना? फिर कापासेरा से भी आ सकते हो, राइट? डिफरेंट रोड्स है. So how you prefer that road? Sometimes shortest road also not preferable. कभी कभी शॉर्टेज रोड में क्या होता है, ट्रैफिक जाम होता है या कुछ तो गड्ढा वड्ढा खोद के रखता है, तो हम लोग दूर से आते हैं, है ना?
कभी कभी दूर वाला रोड रोड से भी और उससे भी दूर वाला रोड और अच्छा लगता है, क्योंकि वो ट्रैफिक लेस होता है एकदम। आउटर रोड, रिंग रोड मान लो हाईवे है, तो तुम उधर से आते हो, राइट, जल्दी पहुंचते हो। ऑल्दो डिस्टेंस इज मोर, यू रीच little earlier than the shortest path. So it doesn't like also कि तुम मोस्ट ऑफ द टाइम तुम शॉर्टेस्ट पाथ से आते हो जो तुम्हारा फेवरेट पाथ है, ठीक है, लेकिन कभी कभी तुम दूसरे रोड से भी जाते हो, राइट, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाते हो कभी भी, राइट, कभी कभी जाना पड़ता है। तो दैट्स हाउ इज दिस सीक्वल, राइट, दैट्स हाउ इज सीक्वल वर्क्स। लाइक सीक्वल का भी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोग को डिफरेंट वे से हम लोग अचीव कर सकते हैं रिजल्ट सेट। तो कब हम लोग को क्या करना है वो डिपेंड करता है ऑन दैट सिचुएशन, ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, कि कैसा डेटा सेट है, जल्दी मतलब होगा या नहीं होगा, किस टाइप के है। तो वो सब के बेसिस में, और जितना प्रैक्टिस करोगे वो सब तुमको धीरे धीरे इजी लगता रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू टेल लाइक प्रैक्टिस। ओके, तो इसका इसी का मैं इसी में एक बार दिखा देता हूँ कि जॉइन से हम लोग कैसे कर सकते हैं शीप। ठीक है, सपोज मैं इसको वेयर, ये जो सब क्वेरी है इसी को मैं एक टेबल बना लेता हूँ, इनर जॉइन, ठीक है, जैसे इसको नाम देता हूँ एम्प्लॉय टेबल, और इसको बोलता हूँ एवरेज सैलरी टेबल। और ये जो एवरेज सैलरी, इसको मैं एक एलियास देता हूँ सैलरी, क्योंकि मुझे ऑन लगाना है ना। ई डॉट एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू, जो दूसरा टेबल है क्या था, ये टेबल का नाम दिया था ना पूरा एक को, राइट। या तुमको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ए कर दो, ए डॉट, मतलब हम लोग एलियास नाम को बड़ा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि ई और ए ही दे दे। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस टेबल। तो इसीलिए मैंने एवरेज सैलरी दिया ताकि मुझे ये पता लगे कि ओके मैंने ये सब क्वेरी रन किया था एज ए टेबल, बट दैट इज नथिंग बट एवरेज सैलरी। ओके, उसके अंदर जो सैलरी है डॉट सैलरी, क्योंकि टेबल को तो हम लोग ज्वाइन में नहीं लगाएंगे ना, यू रिमेम्बर ज्वाइन, ज्वाइन, ये ऐसे टेबल का नाम This लिख के one, देन, same table name you are joining, right? Yeah. हाँ, बट विद जो द दोनों हेल्प में ऑफ, सेम था वही किया था ना। हाँ, तो अभी देखो क्या आता है रिजल्ट। सो नाउ इफ यू रन दिस रिजल्ट, क्या हुआ, कुड नॉट बी बाउंड on salary, average salary on salary. Okay, But में आ गया। alias name average salary, no, it is not acceptable. Sorry, as I have given more na. SAL. So see, so what it is, what it is doing. So this is also doing the same thing. If you see the result set of both, see same to same, right? So what it is doing, see, I am telling you, instead of where clause here, इसको मैं एक टेबल ही बना लिया कि भाई इसका टेबल दे दो। सिंपली थिंक लाइक दिस, ओके, इनर जॉइन, ठीक है, ये टेबल हो गया मेरा, ये मेरा कॉलम था। आई टोल्ड यू राइट, इनर जॉइन या जो भी जॉइन लिखो उसमें टेबल से जॉइन करता है, एंड देन वी यूज ए ऑन टेबल के एक मैचिंग कॉलम से जो कि सेम कॉलम हो, मतलब एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ पे जो सैलरी एवरेज सैलरी, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एम्प्लॉय सैलरी ओनली। सो इट्स ए मैचिंग डेटा। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज ग्रेटर देन लेस देन। व्हेन वी यूज मोर देन, तो मेरा एवरेज सैलरी मोर देन, मतलब सॉरी, मेरा एम्प्लॉय का सैलरी जो ई टेबल में है, इज इट मोर देन एवरेज सैलरी विच आई एम अचीविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल। इस पर्टिकुलर टेबल में क्या था, दिस इज माय सैलरी, माय एम्प्लॉय सैलरी, दिस वन इज मोर देन 7714। अगर है तो लेके आओ। सो ये इनर जॉइन लगा दिया, ओनली मैचिंग वैल्यूज, ठीक है, मोर देन लगा दिया तो ये मोर लाएगा, लेस देन लगा दिया तो लेस लाएगा। तो हम लोग सेम चीज को विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल वेज अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा तुमको बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है, इनर जॉइन ये सब, बट ये थोड़ा देखने में सिंपल लग रहा है, राइट। इट्स जस्ट इजी टू अंडरस्टैंड कि एवरेज सैलरी निकालो और इसको वेयर क्लॉज में लगा दो, ठीक है। देखने में थोड़ा सिंपल लग रहा है, जल्दी फटाक से अगर कभी लिखना पड़े तो इट इज बेटर लाइक ओके, ये मुझे समझ में आ गया एवरेज, और ये मैं लगा दिया वेयर क्लॉज में, ठीक है, समझ में आ गया, समझा कि नहीं, Yeah. समझे सब लोग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सोचो Yes. तुम इसकी जगह तुम टेबल लगा दो, कोई भी एक टेबल है, ये टेबल है, ये एलियस है,
जैसे हम लोग ई एम लगाते थे, एम, ये एम लगा दो नहीं तो एम। और इस टेबल से तुम एक कॉलम लेके आते थे ना जिसको मैचिंग है इससे, ये वो कॉलम है। assume it as a table. So we discussed already, right, ki where we can use subquery, from also we can use. So this is nothing but an example of from, right? ये from के बाद ही हम लोग यूज कर रहे हैं ना inner join पे। So this is nothing but an example of subquery used in the join. Okay, that means after from as a table. Suppose you are practicing only subquery. Okay, interviewer told, okay, you told me these things in subquery, now you tell me how you will do this instead of subquery using join. तब तुम क्या करोगे? अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, you will not get the concept right? So if you practice both the way for the same problem statement, then you can easily tell them, okay, there are two ways to achieve this question's answer. One is like not two ways, there are a couple of ways. Don't give them the two ways because there are another ways available. Okay, there are more ways available to achieve this. SQL is like a sea, ocean. You can write the query in the different ways. A developer's query is never be same with the other developer. Someone use some other tricks, some other may use other trick. Okay, so that's why you need to know the logic behind that query, कि what exactly is doing. एक बार समझ में आएगा चीज तो तुम खुद से ही कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सीटी के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, तो मैं वो बताऊंगा बाद में विथ क्लॉज के साथ जो आता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? Yes. Okay. Yes. चलो सिमिलरली अभी नेक्स्ट वाले में भी देखेंगे टेम्परेचर। सो टेम्परेचर डेटा में क्या है, दिस वी नीड द मैक्सिमम टेम्परेचर in the table and also the city and date related to that temperature. Understood the question? We need the maximum temperature in the table and also the city, also the city and date related to the temperature, that maximum temperature. Okay. Suppose you have this, so simply you will run maximum of temperature. So it will give you maximum temperature, group by not required. So if you want to see what is your maximum, you can do order by, right, in your table, order by temperature. Then it will give you that view only, na entire view, order by, you know, right? Remember order by, ordering like by descending and ascending order. So if you see Ascending, now, descending. yes, if you see what is the maximum order with the help of order by, you can find out. See 27.15, and here also you're getting same result, 27.15. So now maximum temperature आ गया इसका. So what is my actually goal? We are not looking for only maximum temperature. So my goal is select, क्या चाहिए, सिटी का इसमें नाम कैसा था, किस हिसाब से था सिटी, सिटी एंड डेट। ओके, सिटी एंड डेट। चलो टेम्परेचर भी डाल देता हूँ इसमें ताकि तुमको दिखे कि टेम्परेचर क्या आया। ठीक है, फ्रॉम टेम्परेचर डेटा। अभी वेयर लगाएंगे, वेयर किस में लगाएंगे, Temperature data. what we are looking for, max temperature from which column, temperature column, right? That's why we are in temperature. Temperature should be equal to my max number, then only we'll get that max, right? So that's why we're using equal to here. Okay, equal to लेके उस particular item को लेके आ रहे हैं. Okay, तो suppose same thing we can do for minimum. एक maximum हो गया, so minimum लेके आओ, just write here minimum, so it will get minimum. Suppose they need all both of them together, so you can just union concept I'll go through later. So I'm just telling you how to do these things. Union में easily आ गया दोनों का. Union is nothing but it's actually giving the both of the result sets का data
वन आफ्टर वन, लाइक एक को लगा दिया उसके बाद नीचे उसको दूसरे वाला का डाल दिया. बट हियर द कंडीशन इज यू हैव टू हैव सेम कॉलम. डिफरेंट कॉलम सेटअप होने से नहीं आएगा, डिफरेंट कॉलम से नहीं आएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम शुड बी सेम. आई विल गो थ्रू यूनियन लेटर ऑन. जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि कितने वे से हम लोग अचीव कर सकते हैं एंड एक रिजल्ट सेट. तो ठीक है, अभी जैसे मैं क्या बोला था, एक क्वेश्चन था मिनिमम मैक्सिमम का. सपोज इसी क्वेश्चन को देते हैं, विदाउट यूनियन विल डू विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी. We need the minimum and maximum temperature in the table. Also, the city and date related to that minimum and maximum temperature. अब मुझे दोनों चाहिए एक साथ, ला दो दोनों. अब तुम इसमें सोचोगे कि हाँ कि मैं इसी में मिनिमम एंड मैक्सिमम लिख देता हूँ तो मेरा आ जाएगा. इसी में अगर लिख दूं जैसे मिनिमम, ओके, जैसे इसको मैं सिंगली रन करूं मिनिमम मैक्सिमम, तो इट इज गिविंग मी मिनिमम एंड मैक्सिमम. लेकिन एक चीज याद है, वेयर कंडीशन, वेयर क्लॉज में हम लोग एक ही कॉलम के रोज में सर्च करते थे, राइट? इफ यू रिमेंबर, वी ओनली वेयर क्लॉज एक्चुअली लुक फॉर ए सिंगल कॉलम्स रोज, लाइक अगर उसी कॉलम में कुछ है तो मल्टीपल रोज, डेटा पॉइंट्स है वो एक्चुअली, राइट? टेम्परेचर इज ए कॉलम, आफ्टर दैट इक्वल टू इट्स अ डेटा पॉइंट, लाइक क्या क्या डेटा पॉइंट था. इट कैनॉट रन इन लाइक दिस. सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैनुअली दिखाऊं by with the help of this, तो मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि where temperature equal to Hyderabad. We cannot write this, right? Can we? Bolo, can we write like this? We are looking for temperature. Temperature We is are one giving column Hyderabad. and Hyderabad other column. So same thing happens Both are here, right? different column, no? So same thing happens here. So there are two columns come. One is max. One is min. Okay, two column came. So the temperature is not able to find out ki which column to use. It's a max, it's a minimum, but we are looking for temperature. We need only one column to check for. But how can we achieve this now? There are two columns. So that's why you can use or function. We can use two different way. I'll show you. या तो तुम ये इसी को जैसे हम लोग लिखते थे ना, और करके, ये जैसे ये कॉपी कर लिया, ए और टेम्परेचर इक्वल टू, सिलेक्ट करो, एक में मिनिमम डालो एक में मैक्सिमम डालो, इसमें मैक्सिमम डाल दो और इसमें मिनिमम डाल दो. Okay, so if you run now this, it will give you, okay, my temperature is always wrong. I don't know that word correctly spelled or not. So it will give you now. क्यों दिया? क्योंकि अभी इसको जो डेटा मिल रहा है ना, ये एक ही में मिल रहा है, एक ही कॉलम है, तो इट इज चेकिंग फॉर temperature equal to only one column. So it is finding out the data. It is not confused. This particular where clause is not confused between two or three columns. It has only one column to check, and in that column it found, okay, 27.15 is the result set of this and give me this. And इधर से मुझे मिनिमम मिल रहा है, तो इसको बोल रहे हैं कि इसको सर्च करो, और मतलब दोनों लाओ, दोनों कंडीशन, राइट? सो इट इज ब्रिंगिंग. और एल्स तुम ये भी कर सकते हो इसके जगह, जैसे हम लोग इन लिखते थे ना, क्या लिखते थे इन, जैसे टेम्परेचर इन 27.15 16.10. we used to have like this, right? earlier when हम लोग एक बार go through कर रहे थे इनका, so in में भी आ सकता था. So the same thing, this number to achieve, we are using subquery, right? So subquery you can use in subquery you can use in. But subquery का क्या था? उसका subquery has its own parenthesis and in has its own parenthesis, right? Without a parenthesis आएगा क्या? Suppose I am removing this parenthesis, will you get the result? No, right? So you must need to give the parenthesis for the in. In actually the parenthesis include all entire, जो भी इनके अंदर है उसका बाहर एक parenthesis और ending में एक.
सो इसमें तो नहीं दिया हम लोग ने, क्योंकि इसमें ये जो स्टार्ट हुआ है ये इसमें एंड हो गया, देन कॉमा आया, फिर ये इसमें स्टार्ट हुआ इसमें एंड हुआ, तो इनका सारे डेटा के अंदर और बाहर तो मेरे पेरेंथेसिस दिया नहीं, so that's why we need to give a parenthesis for in, just to make it easy. I'll give it like this. Okay, so now it will be easy for you to understand. So iska, okay, so now if you run with the help of in, or okay, no, what or on, you, it is simple thing. See, in means in, I'm giving equal to. okay. Okay, so if you give in, it's giving me data. ये समझ में आया? ये सेम टू सेम लाइक दिस. तुम सिंपल वे से समझो कि मुझे ऐसे डेटा को अचीव करना है, उसके बाद इस क्वेरी को लिखो कि ये पॉइंट में कैसे लाऊंगा ऐसे. ओके, आई एम गेटिंग दिस पॉइंट. ये पॉइंट कैसे लाऊंगा ऐसे, और फिर मुझे को इन लगा के लगा देना है, बस आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट सेट. ठीक है, Okay. अंडरस्टूड ना? यस. थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सब. ठीक है, Yes. देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड मोर. ठीक है, ये हो गया. जैसे इसमें अभी क्या था, अब मैं दिखाता हूँ दूसरा एक चीज. सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा. ओके, अब मेरा क्वेश्चन है कि आई नीड एम्प्लॉय डेटा which is not part of manager table. ठीक है, from employee table. ठीक है, तो तुम एक बार दोनों टेबल रन करके देखोगे कि मैं कैसे इसको अचीव कर सकता हूँ, कैसे इसको अचीव कर सकता हूँ. It can be a question in interview also. Give me employee data from employee table which are not part of, which are not part of manager table, and they will tell you the structure of table. Ki write down employee this 5 records, 4 records, and manager this. So you have to write down and note down, and then you have to tell them the query. Suppose let us go through with these things. So you have this employee table and this is manager table. Okay. Employee name, employee salary. Okay. So इसमें दोनों को तुम अभी दोनों टेबल को कनेक्ट करना है. You can use join, no doubt. ये join से हो जाएगा, but his question is using subquery. वो एक वर्ड लगा दिया कि भाई using subquery दिखाओ मुझे. Then how will do? See, select star from employee and manager. किससे हम लोग subquery में कैसे हम लोग एक्चुअली दोनों का सिमिलर कॉलम कौन सा है? मैनेजर आईडीज. Manager ID. सो एम्प्लॉय डेटा वेयर, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसमें एलियास भी दे देता हूं ताकि किस में कहाँ का यूज कर रहा हूं समझ में आएगा. me डॉट मैनेजर आईडी. ओके, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी ले रहा हूं मैं. इन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इक्वल टू नहीं आएगा, उसमें बहुत सारा डेटा आएगा ना मैनेजर आईडी में भी. सिलेक्ट, इसको ही ले लो, ऊपर ले लो, और इसमें मैं स्टार नहीं देख रहा हूँ ना, स्टार में तो कंफ्यूज हो जाएगा. वो बोलेगा मुझे मैनेजर आईडी किस में देखना है, इतना सारा कॉलम है. तो ये बोल रहा है कि मुझे मैनेजर टेबल का मैनेजर आईडी दिखाओ. तो मैनेजर टेबल मान लो एम. ओके, इसका मैनेजर टेबल एम डॉट मैनेजर. मैं एलियस नहीं देने से भी होता है इधर. आई एम जस्ट गिविंग यू सो दैट यू गाइस अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ. ये मैनेजर आईडी किसका है, like from where I'm using this manager ID, and from which table this manager ID. You guys do not have like any doubt, that's why I'm using the alias. Okay, here. So if you see now, you're getting the data. I'll show you the examples, like कैसे ये data आया, क्या आया. ठीक है, now इसको भी और एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और मैनेजर डेटा. ओके, सो रन करो तीनों को. लेट्स गो थ्रू वंस. ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं. ठीक है, so now see here, you just check first the top 2 column. This is the third result set. Okay, so if you see here, there are 7 records in employee table,
3 records in manager table, but we are getting only 5 records from the result outcome. Okay, why? I need employee data from employee table which are not part of manager table using, but I have used in, so not in we have to use, right? Not part of manager table using subquery, not part. So that means before in just use not. Not is a keyword which is used to give us the opposite of in. Like whatever result comes from here, those should not be in my employees manager ID. So if I run now, see, now it will become easy for you to understand. Employee table has this many and manager has this. So what was the question? I need employee data from employee table who are like those employees who are not part of manager table. मतलब ये जो एम्प्लॉय है इसका मैनेजर आईडी मैनेजर टेबल में नहीं है, राइट? दैट इज द मीनिंग, राइट? सपोज 8 मेरा मैनेजर टेबल में है, 9 also I have, 10 I do not have. See, manager table में I do not have 10. This is my manager table. समझ में आ रहा है? This is my manager table, right? Manager. Yes. And this is my employee table. Employee table. And this is the result set जो मैं अभी निकाल रहा हूँ, राइट? तो इसमें देखो तुम, ये जो 10 है ये मेरे 10 वाले जो एम्प्लॉइज है उसके मैनेजर्स आईडीज जो 10 है वो मेरे मैनेजर टेबल्स में नहीं है. So that's why I am getting 10 in my result set because what I wrote in. So suppose select me the manager data from the manager table. ये फर्स्ट मुझे दे रहा है, मैनेजर का डेटा दे रहा है. अब बोल रहा है कि एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट करो जहां पे मेरा एम्प्लॉय टेबल का मैनेजर आईडी नॉट इन दिस. मतलब इसका सिंपल जो क्वेरी है ऐसा आता है एक्चुअली, सिंपल वे में जो मैं अगर समझाऊं. सो इट इज नथिंग बट 108 109 112. अगर इसको भी रन करोगे तो तुमको वही रिजल्ट आएगा. सो इसको मैं बाय जाके क्या एक एक करके, अगर मेरा मैनेजर 1000 मैनेजर्स है, शुड आई राइट माय 1000 मैनेजर आईडीज वन बाय वन? नो, राइट? इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक सिंपल क्वेरी है, राइट? आ गया. सो इसको लिख के लेके आ जाओ, मेरा हो गया. अगर वो बोल रहा है उल्टा क्वेश्चन कि हु आर पार्ट ऑफ मैनेजर टेबल, नॉट हटा दिया उसने मान लो, तब तुमको क्या करना पड़ेगा? नॉट को हटा देना पड़ेगा इधर से. सपोज इसी में देखो नॉट इन, सिंपल है, जो मैनेजर आईडी इसमें होगा वो लेके आओ एम्प्लॉय टेबल से. सो यू आर गेटिंग 5 रिकॉर्ड्स क्योंकि 5 वाला मैचिंग था, राइट? अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया? Yes, Yes. got it. Yeah. इट्स सिंपल, राइट? सो इसमें तुम फिर नॉट को हटा दोगे तो यू विल गेट. ऑलवेज रिमेंबर, नॉट जब रहता है ना इन के आगे तो नॉट इन, सिंपल इंग्लिश में भी वही है ना, नॉट इन, नॉट अवेलेबल इन, तो वैसा ही है. इसमें 5 आ रहा है क्योंकि ये जो 1112 वाला था ना वो मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए 5 आया. इफ यू सी दिस कॉलम्स इन बोले तो आई डू नॉट हैव दिस 12 1. सो 8 8 9 9 8 10 वाला भी नहीं है, 5 है तो मेरा ये 5 आ रहा है. ये जो टॉप का 5 है ना ये आ रहा है, बाकी 10 वाला नहीं आ रहा है. अनिल एंड ऋषि नहीं आ रहा है, देखना अनिल एंड ऋषि इज नॉट अवेलेबल, ऋषि आर नॉट अवेलेबल इन दैट रिजल्ट सेट, बाकी सब है. समझ में आया? तो ऐसे लिखते हैं. और इसमें देखो, इसमें मल्टीपल रोज आ रहा है, राइट? तो ये मल्टी रो का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है? तो इसको भी तुम इनर जॉइन से लिख सकते हो, राइट? वी ऑलरेडी वेंट थ्रू दिस. इन लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन, इसको लेफ्ट राइट से लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो कोई बताओ? मुझे निकालना है ये सिंपली, ये तो मेरा सब क्वेरी हो गया, ठीक है? अगर मुझे यही चीज यूजिंग ये नॉट इन रहने दो, इसमें मैं भेज दूंगा एक क्वेरी भी नॉट इन. और सपोज आई नीड दिस यूजिंग जॉइन, तो इसमें क्या नॉट वाले पार्ट का बोल रहा है ना, मतलब नल बोले तो तुमको हमेशा याद रहना पड़ेगा. ओके, दैट मींस समथिंग लेफ्ट और राइट,
and which will be left, which will be right. You have to decide it based on your question. I need employee data from employee table who are not part of manager table. That means employee tables का data चाहिए मुझे. So that will be the main Left table. table for me. Suppose now this, so left join manager table, manager data किस में लगाओगे? on employee data हो गया e, इसको डाल दिया m, लेफ्ट जॉइन को नीचे लेके आते हैं, थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा. on e डॉट e का मैनेजर आईडी को इक्वल टू m का मैनेजर आईडी से, हाँ m के मैनेजर आईडी से कर रहे हैं, राइट. एंड देन नॉट इक्वल टू एक बार इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे. सपोज अभी क्या बोल रहे हैं? आई नीड एम्प्लॉय डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हु आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजर टेबल. सो जो मैनेजर टेबल में नल आ रहा है ना, उसको हटा दो. अब लेफ्ट में मैं बोला था ना वेयर में राइट वाला लेंगे, ये लेफ्ट है, ये राइट है. ओके, सो वेयर राइट वाला टेबल कौन सा था? एम. एम मैनेजर आईडी, मैनेजर नेम इस और मैनेजर आईडी इक्वल टू नल. कुछ भी एक ले लो क्योंकि सब में नल ही आएगा, उसमें इज नल. सो अभी देखना इसमें भी 2 ही रिकॉर्ड आएगा तुम्हारा, 2. अगर तुमको ये वाला डेटा चाहिए बस पहले की तरह ओनली दिस रिजल्ट सेट, तो बस इसमें ई डॉट लगा दो, मतलब राइट टेबल का ऑल लेके आओ, सारे कॉलम. लेफ्ट वाला जो नल नल है उसको हटा दो, तो आ गया. तो इफ यू सी दिस 2 क्वेरीज ऑल टुगेदर, बोथ आर गिविंग मी सेम रिजल्ट. लेकिन ये लिखने में कितना टाइम लगा? फटाफट हो गया. ये लिखने में थोड़ा टाइम लगा, राइट. ऑल्दो दिस इज फास्टर देन सब क्वेरी. So वही बोल रहा हूँ, based on your requirement and that time, like how you need the data, and based on data sets you can do both, whatever is feasible. ठीक है. अगर इसमें जैसे नॉट इन की जगह इन लगाया था, इन बोले तो क्या होगा? आर पार्ट ऑफ मैनेजर टेबल. तब आर पार्ट ऑफ मतलब क्या? नॉट वर्ड हट गया तो इनर हो गया, मतलब दोनों में होना चाहिए. तब देखना दोनों का रिजल्ट सेट. रुको, इनर जॉइन में ये हटा देंगे. इनर जॉइन में ये नल नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा, नल का जरूरत नहीं है अभी. इनर जॉइन में नल ऐसे भी देता नहीं है. तो अभी मैं रन करूंगा दोनों को. सो सी 5 सेम. ठीक है. अगर उल्टा बोल दिया, आर नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉय टेबल, आई नीड द मैनेजर डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नॉट पार्ट ऑफ, तब उल्टा कर दो चीजों को. इधर की जगह इधर एम्प्लॉय लगा दो, इधर रुको, जैसे आगे सेम क्वेश्चन में, मतलब सेम क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, ताकि यू गाइस आर 100% श्योर कि क्या हो रहा है. ओके, सपोज यूजिंग जॉइन यूजिंग सब क्वेरी ना. ओके, नाउ यूजिंग सब क्वेरी. सो अभी क्या चाहिए? आई नीड मैनेजर डेटा. नाउ उल्टा, मैनेजर डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय मैनेजर टेबल हु आर नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉय टेबल यूजिंग सब क्वेरी. तो इसको उल्टा कर दो, इसको मैनेजर को इधर लेके आओ, फिर एम्प्लॉय को उधर लेके जाओ, राइट. इसको ई कर दो, इसको ई कर दो, इसको एम कर दो. सो नाउ यू विल गेट द मैनेजर्स, क्योंकि मेरा एक मैनेजर था जो कि मेरा एम्प्लॉय डेटा का पार्ट नहीं था. कौन सा मैनेजर था? आई थिंक 1. ओके ओके, इन लिख दिया ना मैंने. इन में मतलब 8 9 वो एम्प्लॉय टेबल का पार्ट है. देखो मैनेजर एंड एम्प्लॉय टेबल चेक हियर, 8 and 9 विल बी पार्ट. 8 9 आर पार्ट, बट 12 इज नॉट पार्ट. सो नॉट इन लगाने से मेरे को 12 लगा देगा, 12 ला के ला देगा 12. ओके, सेम लाइक यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है टेबल वेबल. यहाँ पे जस्ट इनर जॉइन के साथ राइट जॉइन लगा दो, तो राइट वाले का लेके आएगा. जॉइन में वो इजी है कि राइट लगा दो और वेयर कंडीशन लगा दो, बिकॉज राइट जॉइन में तुमको मैनेजर का दे देगा डेटा, और इसमें मैंने ई लगाया था इसीलिए ऐसा आ रहा है. सो राइट जॉइन में यू विल गेट मैनेजर्स इंफॉर्मेशन 12. तो वेयर कैन लॉस में क्या करेंगे हम लोग? लेफ्ट टेबल को लगा देंगे, ई टेबल. समझ में आ रहा है ना? yes. Yes. ये नेक्स्ट वीक का टेस्ट रहेगा इसका. ठीक है, अभी देखो आ गया. इसमें मैं अभी, क्योंकि मैं राइट साइड से डेटा ले रहा हूं अभी,
जो कि मेरे एम टेबल से है, तो इधर एम डॉट स्टार्ट लगा दो ताकि एम टेबल का डेटा मुझे दिखा दे, ये नल वल ना दिखाए, इतना सारा कॉलम की डबल डबल जरूरत नहीं है। तो देखो आ गया, एंड व्हेन यू रन बोथ टुगेदर यू विल गेट राइट साइड का डेटा, सेम डेटा। ठीक है, समझ गया? Yes. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू कोरिलेटेड। तो ये मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना कोरिलेट का कैसा होता है। तो कोरिलेशन का एक मैं लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है? ठीक है, इसमें क्या है, फाइंड मैनेजर्स हु डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉइज। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड मैनेजर्स हु डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉइज। मतलब ये जो मेरा मैनेजर है ना, इसमें 12, इसके पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है ना, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय का मैनेजर 12 नहीं है, राइट? गॉट इट? व्हाट इज माय क्वेश्चन? Yes. Find the managers who do not have any employee assigned to him. कुछ कुछ होता है, right? कुछ कुछ companies में there are managers, the designation is managers. If you see the org chart, he or she doesn't have any employee assigned to that person. So उस organization में मान लो लाखों employees है, so how you can, एक दो employee होता तो you easily can find out, but HR को देखना है पूरा डेटा, तो कैसे दिखेगा? तो ये आ गया मेरे क्वेरी, राइट? तो इसके साथ क्या होता है, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट इज थिंग जहां पे हम लोग कॉलम नहीं लिखते हैं, जहाँ पे कॉलम नहीं लिखते हैं, कि जैसे वेयर में लिखते थे ना कॉलम इक्वल टू। एग्जिस्ट मतलब ये भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस टेबल का जो भी डेटा इसमें साथ मैचिंग कर रहा है कि नहीं। सो ये वन ऑफ द कोरिलेटेड का एग्जांपल है, क्योंकि ये देखो इसमें दिखाता हूँ कैसे होता है। सपोज मैनेजर वाला था तो मैनेजर वाला दिखाता हूँ, वो उल्टा था, एम्प्लॉय वाला है वो, ठीक है? नेक्स्ट वाला, तो सपोज ये तुम जो लिख रहे हो, अब देखो मैनेजर डेटा एंड देन आई जस्ट राइट इट हियर। जस्ट मैं इस पार्ट को रन कर रहा हूँ, ठीक है? ओनली आई एम रनिंग दिस पार्ट, वेयर को हटा के इस पार्ट को। तो इसमें मुझे आ रहा है 8 8 9 8 9 10 10। तो मेरा एम्प्लॉय टेबल से मैनेजर्स दे रहा है ओनली, आई एम गेटिंग द मैनेजर्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ओके? एंड where my e dot manager id, this manager id is equal to m dot manager id. M is this, so it is querying. So to run this subquery you cannot run alone. I told you, right? Correlated subquery cannot run alone, it is dependent on these things. So if you run both together you will get 12. So what it is doing, it is running this first one by one, it is matching. So see, I'll show you, I'll write both three. So what it is doing, I'll just give you examples so that you guys understand कि इसके थ्रू क्या हो रहा है। ओके, सो जब ये पहले रन किया मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये रन किया 108, इट इज गोइंग टू मैच विथ एम मैनेजर आईडी। ये जा रहा है इसमें आउटर क्वेरी में जा रहा है कि एम का मैनेजर आईडी 108, इज इट मैचिंग? इट इज मैचिंग, बट व्हाट वी नीड, नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट मैचिंग। तो ये मैचिंग है तो इसको नहीं चाहिए, इसको ड्रॉप कर दो। फिर अगेन it is going to match 108 to 109. So like that it is matching one by one until and unless it is matching 108 का ये मैचिंग हो गया, ड्रॉप 109 का ये मैचिंग हो गया, 108 में नॉन मैचिंग था बट ये मैचिंग हो गया। एक भी मैचिंग मिल रहा है तो लेके नहीं आएगा, मतलब एनीथिंग इज अवेलेबल। दैट मींस एक मैनेजर का कोई भी एक एम्प्लॉय है तो वो डेटा नहीं लाएगा अगर उस मैनेजर का एक भी एम्प्लॉय नहीं है। सो 12 का एक भी एम्प्लॉय नहीं है, इट्स नॉट मैचिंग एट ऑल किसी भी एक रिकॉर्ड से। सो मैं क्या बोला था, उसमें 1 to 1 क्वेरी होता है, राइट? इसीलिए स्लो होता है कोरिलेटेड, सो इट इज बिकमिंग स्लो, राइट? इट इज मैचिंग 1 by 1। तो लास्ट में 12 का मिल गया कि 12 इज नॉट मैचिंग, सो इट इज ब्रिंगिंग 12। और उधर से उल्टा करके तुम नॉट की जगह एग्जिस्ट लिखते हो, समझो नॉट का यूज इसमें यही है मोस्टली, वाइस वर्सा ऑपोजिट एग्जिस्ट। अभी क्या हो गया, ये जो भी रिजल्ट सेट आएगा मैनेजर आईडी से आएगा, इज इट एग्जिस्ट इन माय दिस क्वेरी? You do not need to define while writing exist की manager ID. Suppose if you define, it will throw an error, क्योंकि exist command यूज ही होता है डायरेक्ट टोटल उसमें टेबल्स पे, वो जो उसका डेटा है। देखो exist के साथ ये नहीं आता है, ओके?
तो अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं, सपोज मैं नॉट को हटा दिया, एग्जिस्ट को लाया। तो अगर मैं अभी देखूं एग्जिस्ट के लिए 8, 9 and 12 3 are my managers. Find the managers who do not have any employee. अभी मैं बोल रहा हूँ find the managers who have employees. तो अभी 8 का एम्प्लॉय है कि नहीं है, दिख रहा है मुझे, है ना। 9 का एम्प्लॉय है कि नहीं है, दिख रहा है। 12 का एम्प्लॉय है कि नहीं, नहीं है। तो 8 और 9 मुझे लेके आएगा इसमें, जो कि 8 और 9 लेके आ गया, राइट। तो नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट का वही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हो तुम लोग नॉट एग्जिस्ट में, सिंपली व्हाट यू आर डूइंग, सी आई एम टेलिंग यू। सपोज इसमें क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल जाता हूं। सपोज ये क्वेश्चन मेरा उल्टा हो गया, मे बी टिल that 10 minutes I can cover up, okay, let's see. Then I'll go through another example of correlated with more detail, okay. So अभी मैं बोल रहा हूँ मैनेजर who have, इसमें लिखा था who do not have, okay, who have employees, okay. अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट, पहले मैं बोल रहा हूँ मैनेजर हु डू नॉट हैव एम्प्लॉइज, ठीक है। तो मैं पहले लिख रहा हूँ मैनेजर का निकालो फ्रॉम, क्योंकि मैनेजर आईडी दोनों टेबल का अपना ज्वाइनिंग क्राइटेरिया है, फ्रॉम अपना मैनेजर टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से निकालो, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल से फाइंड करना है मुझे वो है कि नहीं। एम्प्लॉय टेबल से मैनेजर को निकाल लो, ठीक है। इसमें डिस्टिंग भी लिख सकता हूँ मैं अगर लिखना है तो, क्योंकि डिस्टिंग भी लिखूंगा, देखता हूँ डिस्टिंग में कैसा आता है। लेट्स सी इफ इट इज गिविंग मी रिजल्ट और नॉट। डिस्टिंग में भी आ रहा है रिजल्ट, क्योंकि डिस्टिंग में डिस्टिंग दे रहा है, लेकिन मेरा मैनेजर आईडी तो वही है ना जो मेरे पास टेबल में है, सब कुछ अवेलेबल है, जस्ट टू मैच फॉर देम, ओके। डिस्टिंग से क्या होगा, रिजल्ट सेट सर्च जो है ना वो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, क्यों, बिकॉज ये 8 से 8 मैचिंग हो रहा है, ऐसे ऐसे मैचिंग हो रहा है ना। डिस्टिंग मतलब No क्या है, दोनों duplicates ना, दोनों no 8 को नो डुप्लीकेट, सो इट विल बी लिटिल फास्टर, ओके। सो नाउ मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वी गॉट इट, ओके। नाउ वी हैव टू, क्या चाहिए, मैनेजर, फाइंड मैनेजर who have any employees in employee table, ठीक है। सो अभी मुझे फाइंड करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर, मैनेजर से मुझे निकालना है डेटा, ओके। मैनेजर डेटा से निकालना है मुझे मैनेजर्स का इंफॉर्मेशन, ठीक है। वेयर, ठीक है, ये एक ऐसे भी लिख सकते हो वेयर, बट इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा मैनेजर आईडी। देखो इसका सेम इसके थ्रू भी लिख सकते हो, एग्जिस्ट को, मतलब लिखने का तरीका है डिफरेंट डिफरेंट। वेयर मैनेजर आईडी इन सिलेक्ट मैनेजर आईडी एम्प्लॉय, देखो नॉट इन लिखोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो तुम्हारे ऊपर वाले में आ रहा है, राइट। सो देयर आर मेनी वेज, ऐसा नहीं कि चीजों को तुम कॉम्प्लिकेट करके लिखो हमेशा। सपोज दोनों को मैं लिखता हूं पहले, ये दोनों को जो लगाया था ना इसमें एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों का रिजल्ट सेट देखो सेम है। देयर आर मेनी वेज टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन, बट कहाँ पे क्या यूज करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको इसके थ्रू मिल रहा है कि नहीं। कभी कभी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन आएगा जिसमें तुमको ऐसा भी यूज करना पड़ सकता है। सो व्हेन टू यूज विल गो थ्रू, ओके। सो यहाँ तक समझ आया। देखो इसको मैं सिंपल वे से निकाल लिया। अगर तुम्हारा लॉजिक क्लियर होगा ना, कोई तुमको मान लो कोई ऐसे लिख दिया और तुम्हारा लॉजिक क्लियर है कि मुझे भाई ये निकालने के लिए इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो, सिंपल ऐसे लिख दो ना तुम, आ गया। गॉट इट। सो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हम लोग कोरिलेटेड बिना यूज किए हम लोग को मिल सकता है। कोरिलेटेड सब क्वेरी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग या तो इनर जॉइन यूज कर सकते हैं, या फिर ट्राई कर सकते हैं कि मल्टी रो एंड स्केलर से भी क्या हम लोग का निकल सकता है क्या पॉसिबल रिजल्ट। गॉट इट। तो एक एग्जांपल था, तो ये था कोरिलेटेड, उसका एक एग्जांपल हाउ, बिकॉज दिस सब क्वेरी इनर क्वेरी इज रिलेटेड टू आवर आउटर क्वेरी, बिकॉज इट्स मैचिंग वन बाय वन,
एंड देन फाइंडिंग आउट द रिजल्ट. सो इसका मैं एकदम सिंपल से एग्जांपल अभी देने वाला हूँ. जो थर्ड हाईएस्ट ये वाला, और मे बी सेकंड हाईएस्ट सैलरी, जो भी तुमको लेना है. सो इफ यू सी हियर एम्प्लॉय टेबल, let me make it the salary descending. Okay, order by salary, employee salary, ताकि मेरे को easily पता लगे कि क्या हो रहा है. employee salary descending. Okay, so if I just write now, see, I'm getting third only, right? 9500 I'm getting correctly. If I just click here 4, I'll get 8000. Okay, 8000. So how I'm achieving this? The question is how I'm achieving this. इसको order by को अभी comment out कर देते हैं. So first, what we are doing, we are finding out distinct employee salary from employee table. मैं distinct निकाल रहा हूं ताकि मुझे काउंट करना है, ठीक है? और उस काउंट को मैं इस काउंट से मैच करूंगा. 7 आया, इस 7 को मैचिंग करता जाऊंगा. और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिंपल वे से मैं समझा रहा हूं, ठीक है? अब देखना, एक एक्सेल मैंने प्रिपेयर किया है. ये मेरा आउटर क्वेरी है, इनर क्वेरी है, ठीक है? इन आउटर क्वेरी, इनर क्वेरी आई हैव यूज्ड ये वाला चीज. इससे मोस्टली ये काम हो रहा है. E1 मतलब मेरा ये जो बाहर का एम्प्लॉय सैलरी है. E2 मतलब दिस वन, दिस सैलरी, इसका जो सैलरी है. तो इसमें क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ. देखो इसमें लॉजिक क्या हो रहा है. जैसे मैं 5000 डाल रहा हूँ, तो इट इज लुकिंग फॉर इक्वल टू. ओके, इक्वल टू मिल गया. एंड मोर मतलब ये ज्यादा चाहिए, राइट? E2 का ज्यादा वाला. समझ में आ गया? E2 शुड बी मोर देन E1, राइट? सो मोर देन में 5000 से जितना भी मोर है सब आ गया, राइट? तो रिजल्ट सेट कितना हो गया मेरा? 6 हो गया. 1 2 3 4 5 6. तो मेरा मिनिमम वाला कौन सा था? इक्वल था. इक्वल वाला मिनिमम आ गया. समझ में आ रहा है? सपोज इसमें जाता हूँ, रुको, तब समझ में आएगा. जैसे देखो E1 लेस देन और इक्वल टू E2. तो ये जब E1 हम लोग, ये वाला वेयर क्लॉज है, इस ये मतलब वेयर, वेयर जहाँ पे लिखा है मैंने वेयर 10,000 आ गया. तो मतलब इसके अंदर ये जाके देख रहा है कि मेरा इक्वल टू 10,000 कुछ मिल रहा है क्या, ये वाला, या तो मोर देन, इससे ज्यादा कुछ मिल रहा है क्या? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा है. इसमें है क्या 10,500 से कुछ ज्यादा? एनीथिंग इज देयर? No. So it is getting only one record which is equal to, right? So means what, ये मेरा टॉप है, क्योंकि इससे ऊपर का कुछ था ही नहीं. हम लोग ग्रेटर देन देख रहे हैं इसमें जाके कि मैं जो सर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर ग्रेटर देन कुछ कितना है. वी आर काउंटिंग द ग्रेटर देन नंबर्स. सिंपल सी, वी आर जस्ट काउंटिंग द ग्रेटर देन नंबर. ये जो नंबर है सैलरी है, ये हर एक सैलरी को जा जाके ना इधर से एक एक सैलरी को जाके काउंट कर रहा है. जैसे ये वाला चीज, ठीक है, E1 वाला, मतलब ये 5000 को पहले काउंट कर रहा है. ओके, ये आ गया. 7000 का काउंट कर रहा है. 10 इसको काउंट कर रहा है, इसको काउंट कर रहा है, ऐसा काउंट कर रहा है. जैसे मैंने 4 टेबल्स लिखा है एक एग्जांपल के लिए. 5000 जब काउंट करता है, इक्वल टू 5000 आ गया, मोर देन 5000 ये आ गया, तो कितने रिकॉर्ड्स आ गया? 6. तो मेरा ये कितने नंबर पे था? 6 नंबर पे था, राइट? समझ में आ गया? मेरा ये, अगर मैं ऐसे लिखूं, सपोज डेटा को मैं सॉर्ट करता हूं, देख रहा हूं लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट, ठीक है? टॉप देख रहा हूं ना मैं. सपोज मैं 5000 को देख रहा था, तो 5000 मुझे इधर मिल गया और बाकी मुझे मिल गया, मोर देन भी मिल गया, इक्वल मिल गया. जब मैं इक्वल वाले को काउंट करूंगा, हाउ व्हाट इज द माय रैंकिंग, 1 2 3 4 5 6. तो वो बोल रहा है मेरा इक्वल 6 में आ गया, मिनिमम वाला. इसका क्या हो रहा है अभी देखो, 1002. अभी क्या कर रहा है पता है? 2 बोले तो ये मुझे बोल रहा है कि दो नंबर किस में आ रहा है, दो रिकॉर्ड्स किस में आ रहा है, आउट ऑफ दिस रिकॉर्ड्स, आउट ऑफ दिस रिजल्ट सेट. इस रिजल्ट सेट को अकेले रन भी नहीं कर सकते हो तुम. क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट सेट डिपेंड करता है इसमें. अब मैं एक काम कर सकता हूँ, फिर इसकी जगह पे मैं 10,000 डाल देता हूँ, ठीक है? अब तो चलेगा ये रिजल्ट सेट ऑटोमेटिक अपने में. देखो, रुको, E1 का सैलरी, ओके सॉरी, इसमें डालना है 10,000, क्योंकि मैं E1 को हटा ही रहा हूँ, अभी इसको रन कर रहा हूँ बस. देखो 2,
ठीक है, मैं डिस्टिंग को भी हटा देता हूँ, तुमको कंफ्यूज हो रहा है तो आई विल जस्ट डिवाइड दिस क्वेरी इनटू स्मॉल पार्ट्स सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इजीली। हटा दो इसको भी, ठीक है, डिस्टिंग सैलरी रहने दो। अब 10,000 के ऊपर मेरा कितना सैलरी है, आई एम जस्ट चेकिंग इट। 10,000 एंड 10,005, तो मेरा 10,000 का रैंकिंग क्या हो गया, 2 हो गया ना। अगर मैं काउंट करूं, देखो समझ में आ रहा है काउंट क्यों कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि 10,000 अगर मेरा एम्प्लॉय E2 भी हटा दो ताकि और अच्छे समझ में आए, इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, बस इसी को देखो, नो नीड टू सी अदर थिंग। सी नाउ आई एम टेलिंग यू, ओके, काउंट भी हटा दो, डिस्टिंग लेके आओ। तो यू आर चेकिंग फॉर द सैलरी, डिस्टिंग सैलरी हियर, ओके, क्योंकि हम लोग को काउंट एक ही सैलरी पे करना है, राइट। सपोज डिस्टिंग पे हटा दो, ये दोनों रन करो, मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, इसलिए 2 दिखा रहा है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट काउंटिंग द रिजल्ट सेट आउटकम, कितना मिल रहा है 2। डिस्टिंग क्यों लगा रहा है, क्योंकि डुप्लीकेसी आएगा तो उसको भी एक ही काउंट करो फिलहाल के लिए, ताकि मुझे वो रिजल्ट सेट में बाद में दोनों दिखाई दे, नो प्रॉब्लम, बट डिस्टिंग निकालो क्योंकि मुझे डुप्लीकेसी नहीं देखना है इसमें। तो अभी देखो क्या हो रखा है, 10,000 जब डाला मैंने, इसका 2 रिकॉर्ड लेके आ रखा है, और इसको इसमें काउंट इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं मैच कर पाऊं, वेयर पोजीशन कितने में है, 2 में मतलब कौन सा है 10,000। अगर इसको मैं 8,000 कर दूं, मेरे पास 8,000 भी था, राइट। तो देखो 8,000 इक्वल टू प्लस उसके ऊपर जितने थे उस टेबल में सारा लेके आ रहा है, और 8,000 का पोजीशन बता रहा है कि इसमें हम लोग का कितना काउंट आ रहा है, 4। तो 4 समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं। हेलो, Yes, Kamal, got it. यू गाइस अंडरस्टैंडिंग और नॉट, लाइक हाउ इट इज वर्किंग। Understanding. Hmm. कुछ भी डाउट है तो पूछो, क्या डाउट है पूछो। The rest of the 2 you are not replying, so you have a doubt, right? Ask me what is your doubt. Got it. hmm? ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, सो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, इट इज डूइंग नथिंग, ये फाइंड आउट कर रहा है वो ऊपर के टेबल से नंबर्स, और उसका ग्रेटर देन जो है और इक्वल टू वो निकाल रहा है। इक्वल टू क्यों निकाल रहा है, ताकि मैं करेक्टली उसी नंबर को लेके आऊं, काउंट मेरा करेक्ट रहे और उस नंबर को ही लेके आऊं। तो इसीलिए इक्वल टू भी लगा रहा था कि अगर इस नंबर का इक्वल टू वाला लेके आओ प्लस ग्रेटर देन, ताकि मैं वो सीक्वेंस पता लगे। जैसे इसमें सीक्वेंस पता लग रहा है ना मुझे, 800 के ऊपर 8,000 के ऊपर मान लो ये मेरे को ये नंबर लेके आ गया, जैसे उसमें लिखा रहा था 8,000, राइट। सो आई नो माई फोर्थ नंबर पोजिशन इज 8,000। सो वेयर क्लॉज में अगर 4 लगाऊंगा तो मुझे 8,000 लेके आएगा, वेयर क्लॉज में अगर 3 लगाऊंगा तो 3,000 9,500 लेके आएगा, 2 लगाऊंगा तो 10,000। सो हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, इट वर्क्स इन दिस मैनर कि भाई 5,000 का पूरा देखता है वो ऊपर का कौन कौन सा है, तो रिजल्ट है 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में इस 6 नंबर पोजीशन में ये 5,000 आएगा। 10,000 को देख रहे हैं, 10,000 इक्वल टू और मोर देन 10,000, हाउ मेनी records 2, so result set is actually in 2, 10,000, so like that here 1, here 4, so like that it is working। ओके, ये क्या कर रहा है, इसको इधर से लेके जब मैं आता हूं, जैसे E.E1 डॉट एम्प्लॉय सैलरी, ये थोड़ा सा जब तक लिखते रहोगे तब पता लगेगा तुमको, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आई नो, बट वंस यू कीप प्रैक्टिसिंग यू विल कम टू नो। सी व्हाट इट इज डूइंग, इट इज जस्ट गिविंग यू सम नंबर्स बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, जहाँ पे एम्प्लॉय 1 का सैलरी, जो भी सैलरी आ रहा है, ठीक है, ये जो सैलरी आ रहा है इसको, ये सैलरी का इस टेबल में मोर देन एंड इक्वल टू में कंपेयर करके उसका काउंट लेके आ रहा है, उसका काउंट डिस्टिंक्ट काउंट लेके आके उस काउंट को वेयर 2 के साथ मैचिंग कर रहा है, जहां पे 2 होगा तो इसका रिजल्ट सेट दे दोगे 2 सेकंड वाला, 3 होगा रिजल्ट सेट दे दोगे 3। क्या समझ में बताओ, दिस इज नथिंग बट ए कोरिलेटेड सब क्वेरी, क्योंकि ये डिपेंड ऑन दिस,
E1, ठीक है। और फिर ये वेयर डिपेंड ऑन दिस, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब क्या कर रहे हैं, ये जाके ना, ये जो मैं रिजल्ट सेट में डाल रहा हूँ, अगर ये जाके एक एक बार इसमें इसमें देख रहा है कि इज इट मोर देन और इक्वल टू 5000, इफ इट इज देन मार्क इट, इफ इट इज नॉट, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को टॉप में चाहिए ना, इस ये नंबर चाहिए, इस ये कौन सा पोजीशन में वो चाहिए। सो इसका पोजीशन निकालने के लिए एंटायर टेबल का नंबर्स में मैं कितने नंबर पे हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो मुझे चाहिए। अंडरस्टूड? मैं कितने नंबर पे इस टेबल पे हूँ, मेरे नीचे कौन है पता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे ऊपर कौन है, ताकि मेरे को नंबरिंग मिले कि मैं 6 में हूं या 7 में हूं। जैसे तुम्हारा मार्कशीट में मार्क आता है, तो उसमें 5th नंबर में कौन कौन है पता लगने के लिए तुमको पहले वो पता लगना पड़ेगा ना कि 1 2 3 4 में कौन है, किसका मार्क है। सपोज यू गॉट ए न्यू मार्कशीट, ओके, यू गॉट ए मार्कशीट, आउट ऑफ 300 यू गॉट 250, एंड समवन टोल्ड दैट यू आर इन 4th नंबर, 4th रैंक। सो अभी तुमको ये पता लगना होगा ना कि किस बाकी का नंबर कैसे तुमको बताया कि यू आर 4th रैंक। someone must be more than 250, right? because 250 वाला तो तुम ही हो, तुम 4th रैंक पे हो। so the top 3 ranks should be more than 250. someone should know, okay, किसी का 270 आया, किसी का 280 आया, तो you should first know those numbers, right? then only they will come to know you are 250. अगर उनको ये पता ही नहीं है किसका 270 किसका 220 या किसी का 250 के ऊपर मार्क है भी कि नहीं एग्जाम रिजल्ट में, मान लो, ठीक है, एग्जाम में, तो कैसे तुमको बताएगा कि यू आर इन 4th रैंक। सो लाइक दैट इज हैपनिंग, जस्ट टू know these things, it is checking for all the table information where these numbers equal to number or more than number, and it find out the count, okay, मैं कितने नंबर पे हूं। जैसे ये तुम देखो, इसमें समझा रहा हूँ, 290 किसी को मिला और 250 तुमको मिला, तो कैसे तुम्हारा 4th रैंकिंग डिसाइड हुआ, काउंट किया ना। अगर तुम इस 4 को ये काउंट किया तो मतलब क्या हुआ, 4 आ गया ना। सी सिंपल ट्रिक, देखो इससे इजीली समझ में आएगा। तुम 4th नंबर रैंकिंग में हो, कैसे पता लगा तुमको, यू काउंटेड, राइट? समवन द रिव्यूअर और द रिजल्ट जो जो दिया वो काउंट किया, राइट? कि इसको 290 मिला था, मान लो अभी को 290 मिला, राज को ये मिला, रवि को ये मिला, और आ, आ, मान लो कमल को ये मिला। तो इफ आई नीड टू नो माई रैंकिंग, समवन ऑलरेडी रैंक्ड इट, राइट? तो मेरे को ये काउंट करना पड़ेगा 4 इंक्लूडिंग दिस इक्वल टू। अगर मैं इक्वल टू नहीं लगाता हूं, जैसे इसमें मैंने इक्वल टू नहीं लगाया था तो मुझे ये दिया था ना, इक्वल टू नहीं लगाऊंगा तो मुझे ऊपर का देगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ताकि मेरे को मेरा काउंट समझ में आए कि हाँ मेरा नंबर 4th पोजीशन पे है, इसको इसका 3rd पोजीशन पे है, इसका 2nd पोजीशन पे है, एंड इट इज इन 1 पोजीशन। अंडरस्टूड नाउ? क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, सो Yes. 1st पोजीशन के ऊपर कुछ था ही नहीं। इक्वल टू लगाया, इक्वल टू में आ गया, मोर देन में इसका कुछ आया ही नहीं था। सो इट शोस लाइक ओके, मेरा तो मोर देन पे कुछ है ही नहीं, मेरा इक्वल टू है, दैट मींस इट्स ओनली काउंट, दैट्स व्हाई वी आर काउंटिंग हियर। काउंट में 1 आया तो लेट्स मेक इट 1। और डिस्टिंग क्यों लगाया, डिस्टिंग क्यों लगाया, उसका एक रीजन है डिस्टिंग क्यों लगाया। देखो मैं दिखाता हूँ, इंसर्ट, सपोज इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल, लेट मी इंसर्ट ए डुप्लीकेट डेटा, ठीक है। इसमें क्या क्या था, सपोज किसी को अपडेट ही कर देता हूँ एक को, एम्प्लॉय टेबल, I'll just show one example. suppose ये 7000 को मैं 10000 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अपडेट अपडेट अपडेट, क्या था उसका नाम, एम्प्लॉय डेटा सेट एम्प्लॉय सैलरी, याद है ना ये अपडेट क्वेरी, इक्वल टू 10000 वेयर क्या लगाएंगे, Yes. एम्प्लॉय Manager ID. एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू कुछ भी ना, एम्प्लॉय आईडी 102, ठीक है। 102 वाले को मैं 10000 कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखना 102 वाले को किया, राइट? तो 10000 किया, राइट? तो 2nd वाले में मेरे को दिखाएगा।
अब सेकंड में इसमें तो एक ही आएगा ना, देखो जैसे मैं सेकंड लगाऊंगा मेरे को रिजल्ट सेट डबल दिखाई देगा, लेकिन टू फाइंड आउट दैट आई नीड टू डिस्टिंग, राइट, यूज डिस्टिंग। अगर मैं डिस्टिंग यूज नहीं करूंगा तो उसको भी एक ऐसे काउंट यूज करेगा, तो मेरे को देगा नहीं रिजल्ट सेकंड में। तो डिस्टिंग यूज करना ही है ताकि उसको ऐसे डिस्टिंग, जैसे थर्ड में देखना, थर्ड में आ गया ये, क्योंकि सेकंड को स्किप कर दिया। तो इसीलिए डिस्टिंग जब लिखोगे ना तब मतलब वो डिस्टिंग वैल्यूज दिखाएगा, वो वैल्यूज, क्योंकि हम लोग को इसमें काउंट देख रहे हैं ना किसका, यूनिक काउंट्स, यूनिक काउंट कितने हैं, ताकि हम लोग एक एक करके काउंट करें, ना कि डुप्लीकेसी ऐसे ही। अगर इसमें 10,000 है तो मैं सपोज इसमें 10,000 आ गया, राइट, सपोज कौन सा 10,000 था, इसमें 10,000, तो ये एक्चुअली इक्वल टू 10,000, इक्वल टू 10,000 वन टाइम ही है ना, मतलब सेकंड नंबर रो पे है ना, रैंकिंग तो सेकंड ही है इसका, ये तो सेकंड या थर्ड नहीं है, राइट। सेम नंबर मीन्स सेम रैंकिंग। जब सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 250 अगर मान लो चंदू को भी मिल गया, सो इट इज नॉट 5, राइट, ये क्या है, ये भी 4 ही है, लेकिन अगर तुम काउंट करोगे तो 5 में दिख रहा है। समझ में आया? इफ यू काउंट इट इक्वल टू और मोर देन दैट मीन्स इज 5, बट दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज डिस्टिंक्ट, कि अगर डिस्टिंक्ट नंबर है तो इसको एक ही काउंट करो तो इट विल कम 4 रैंक। सो नाउ बेस्ड ऑन सेम नंबर, क्योंकि नंबर के हिसाब से रैंक भी सेम होता है। जब भी बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आता है, यू सॉ राइट, समटाइम थर्ड रैंक में 2-3 लोग होते हैं ऑल ओवर स्टेट में, राइट, अंडरस्टूड और नॉट? थर्ड रैंक या Yes. फोर्थ रैंक पे 2-3 लोग होते हैं, एक नहीं होते। Yeah. अगर मैं ये वाला डिस्टिंग यूज नहीं करूंगा तो ये 5 में या तो ये डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर करेक्टली नहीं आएगा। इसलिए डिस्टिंग यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 4 ही दिखाना है इसमें भी, इक्वल टू और मोर देन। ओके, सो उसके थ्रू हम लोग को मिल रहा है डेटा। अंडरस्टूड दिस क्वेरी? Yes. एक चीज बताना कमल, हाँ। ये बता जैसे ना यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा E2 लिखा हुआ है हम्म सेकंड वाली लाइन में जो है ना, हम्म हम्म। और ऊपर E1, मतलब सेकंड में जो भी है E1 और E2 का थोड़ा सा बता दे क्या है, इसको तूने इसको मत लिख, इसको मत लिख, ऐस लेकिन करके लिखा है। देखो E2 की जगह तो दूसरा लिख दे, ई लिख दे, E1 लिख दे। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, जैसे तुम ज्वाइन इसमें वेयर में ये लगा रहे हो ना, वेयर में कंडीशन लगा रहे हो ना, इस टेबल का, इस टेबल का, इस टेबल को इस टेबल से वेयर में यूज कर रहे हो, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए या तो तुमको कुछ एलियास लगाना पड़ेगा, राइट। अगर टेबल नेम डिफरेंट होता तो यू कैन यूज डायरेक्टली टेबल नेम हियर, टेबल नेम डॉट टेबल का सैलरी। बट यहाँ पे अगर टेबल नेम लगाओगे, हाउ यूल डिफरेंशिएट कि ये टेबल नेम कौन सा है, ये वाला है ना ये वाला है, मतलब ये तो इसी का ले लेगा इनर क्वेरी में। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें से तो लो E2 को, और इसमें से E1 को लो, ये एलियस जस्ट टू, जब सेल्फ जॉइन लगाते हैं ना, वी डिफाइंड दैट पर्टिकुलर टेबल्स एलियस नेम, ताकि किस टेबल को, किस डेटा को, किस डेटा सेट को हम लोग यूज करें। ये एक डेटा सेट है, राइट, दिस इज नथिंग बट ए डेटा सेट, एक डेटा पॉइंट तुमने है। इसमें काउंट किया इसलिए काउंट वाला लगाया, इसलिए उसको दूसरा अलग से दे दिया E2 नाम है ना। हाँ देखो, अच्छा, और है मतलब वो पूरा, ये वरना देखो एक ही होता E1 अगर। E2, E1 E2, ताकि हम लोग ये कैलकुलेट कर पाए कि 5,000 इक्वल टू और मोर देन, इक्वल टू और मोर देन रिजल्ट सेट लाने के लिए हम लोग को 2 सेट क्रिएट किया हम लोग ने, 2 रिजल्ट सेट। ये इनर क्वेरी वाला रिजल्ट सेट, सिमिलर सेट क्रिएट करके हम इसको काउंट क्यों लिख रहे हैं, ताकि मुझे रिजल्ट सेट दे। इसमें जैसे मैं नीचे लिखा, काउंट ना लिखो तुम ऐसे ही लिख दो, 8,000 के ऊपर कितना है, 1 2 3 4, तो उसी को मैं काउंट पे लेके आया, काउंट करो आप, काउंट करके लगा दो 4 में, तो मेरा ये 4 नंबर पोजीशन है। तुमको पोजीशन चाहिए ना, तो 4 नंबर पोजीशन में, तो 4 नंबर पोजीशन का रिजल्ट सेट इससे ऊपर से लेके आ गया कि 4 नंबर पोजीशन मैचिंग हो रहा है। वेयर 3, अगर मेरे को 3 और 3 से मैचिंग हो रहा है तो ये थर्ड वाला दे दो, एम्प्लॉय सैलरी। तो ये कोरिलेटेड क्वेरी में हम लोग इनर क्वेरी में ही आउटर क्वेरी को रेफरेंस करते हैं। जैसे ये एक्चुअली उधर के सैलरी को इधर के सैलरी से मैचिंग कर रहा है, और मैचिंग करके ये डेटा दे रहा है। अगर 10,000 वो आउटर क्वेरी का है ना, ये आउटर क्वेरी का है, मान लो ये आउटर क्वेरी का 10,000 Sorry. को इनर क्वेरी का इधर से मैचिंग कर रहा है। ओके, मेरे पास तो डिस्टिंग में 2 ही रिकॉर्ड है,
1 and 2 डिस्टिंग, ये तो दो डुप्लीकेट है इसलिए डिस्टिंग लिखा 1 2, तो मेरा रिजल्ट से 2 है, मतलब ये सेकंड पोजीशन का डेटा है। जब मैं सेकंड पोजीशन का ढूंढ रहा हूँ वेयर 2, तो मेरे को ये दे दो 10,000 दे दो, जैसे इसमें समझाया मैंने। थर्ड रैंक का मुझे दे दो तो 280। कैसे पता लगा 280? क्योंकि मेरे टॉप में 2 है, लेकिन 2 को काउंट करने से नहीं होगा ना, 2 में तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। थर्ड इंक्लूडिंग माई सेल्फ इक्वल टू और मोर देन थर्ड, दैट मतलब मेरा थर्ड पोजीशन हो गया। हियर 250 इंक्लूडिंग माई सेल्फ इक्वल टू और मोर देन, राइट। फोर्थ आ गया। इसमें भी उसको 250 मिला, तो इसमें 5 होना चाहिए था, लेकिन 4 क्यों आया? क्योंकि डिस्टिंक्ट लिख रहे हैं हम लोग, इसीलिए दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डिस्टिंक्ट, ताकि हम लोग को डुप्लीकेसी के हिसाब से वो ऐसा ना करे कि भाई इसको 5 या 6 कुछ दूसरा दे दे। ठीक है, इसमें थोड़ा नंबर भी तो ऊपर 270 280। कौन सा? मैं कह रहा हूँ ना, हाँ ये तो ज्यादा तीसरे नंबर वाला, ये तो सेकंड पे वो होना चाहिए, थर्ड पे वो होना चाहिए बस। ओके सॉरी यार, गुड 270 पॉइंट। से वो होना चाहिए। कोई और दूसरा लोग देख ही नहीं पा रहा था। हाँ सही। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? गुड पॉइंट, गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ तो मतलब वो टाइप ऑफ मिस्टेक था। तो समझ में आ गया ना चीजें, लॉजिक लॉजिक समझ लो, उसके बाद तुम जब रन करते रहोगे ना खुद से ये सब, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। Yes. ठीक है, एग्जिस्ट का हो ये गया, और थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, फोर्थ 5 हाईएस्ट का ये सब हो गया। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग ने सब क्वेरी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अब तुम लोग को प्रैक्टिस करना है सब क्वेरी का, लेकिन सब क्वेरी हम लोग इंसर्ट में भी यूज कर सकते हैं, डिलीट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए ज्यादा हो जाएगा शायद। एक चीज दिखा देता हूँ सब क्वेरी को, और एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग लिख रहे थे ना वहाँ पे, क्योंकि कल नरेंद्र नहीं था, तो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। मैं बोला ना कि सब क्वेरी यू कैन यूज इन सिलेक्ट आल्सो, राइट। तुम जैसे यहाँ पे स्टार लगा दो, Yes. तो सिलेक्ट वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ कैसे क्या करना है। जैसे एवरेज सैलरी हम लोग वेयर क्लॉज से निकाल रहे थे, सिलेक्ट में जस्ट टू शो यू एन अनदर कॉलम, कि भाई मुझे और एक कॉलम दिखा दो जिसमें मुझे एवरेज सैलरी दिखे मेरे सैलरी के बाजू में ही, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं एस एवरेज सैलरी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो सैलरी का है ना, ये क्या हो गया, कहाँ पे मिस्टेक है बताओ। ओके सॉरी, सब क्वेरी यूज करना है ना, क्योंकि ये तो ग्रुप बाय वाला हो गया। सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट दिस अरे फ्रॉम भाई साहब, दिस फ्रॉम दिस, मतलब ग्रुप बाय लगा लिया था ना। सो एक्चुअली सब क्वेरी यूज करें हम लोग। सब क्वेरी में क्या आता है, पैरेंथेसिस आता है हमेशा, याद रखना। सो अभी तुम रन करो, तो मुझे सिलेक्ट स्टार का जो बाहर का क्वेरी है इसको हटाओ, इसको भूल जाओ अभी, ये चीज को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये मुझे दे रहा है ये रिजल्ट सेट, ये ऐड कर रहे हो एक एडिशनल कॉलम, कि भाई इधर से मुझे बस एवरेज सैलरी दे दो एज एन एवरेज सैलरी कॉलम नेम, ओके, और एम्प्लॉय डेटा। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, इसका कॉलम नेम एवरेज सैलरी क्यों आ रहा है, इसको बाहर लिखना पड़ेगा मतलब। ठीक है, क्योंकि एक ये हो गया डाटा एज एवरेज सैलरी। ठीक है, एक साथ लिख दो ताकि वो वाला प्रॉब्लम ना आए। अब देखो आ गया, मतलब ये एज ए कॉलम हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे केस स्टेटमेंट था ना, केस स्टेटमेंट हम लोग समझे थे ना, केस स्टेटमेंट इसी टाइप का ये डिराइव कॉलम है, कि हम लोग इन सब क्वेरी की और इनर क्वेरी के थ्रू एक कॉलम को लेके आ रहे हैं। तब किसी को ऐसा भी डेटा चाहिए होगा, राइट, रिक्वायरमेंट ऐसा भी आ सकता है कि मुझे एक ऐसा क्वेरी लिख के दो जो कि मेरे सैलरी के पास में ही रहे, और उसको मुझे एवरेज सैलरी दिखाई दे, ताकि आई कैन कंपेयर कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसमें क्या था, फिल्टर, ये फिल्टर नहीं करता है। जब सिलेक्ट में लिखते हो, यू विल गिव द रिजल्ट सेट नॉट द फिल्टर, वेयर में फिल्टर होता है। ठीक है, हम लोग ने इनर जॉइन में लिख के देख लिया, इसमें देख लिया, और इसमें भी देख लिया। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मैक्स, मैक्स क्या है, मैक्स को भी लिख सकते हैं हम लोग Yes. इसे, मैक्स के जगह इधर मैक्स सैलरी लिख दो, मैक्स, तो अभी लिखो, तो मैक्स वाला सैलरी मेरा इतना है, तो ये इजीली पता लग रहा है मैक्स है। तो इस टाइप से सब क्वेरीज लिखते हैं। यू गाइस अंडरस्टूड राइट? समझ Yes. में आया? Yes. चलो ठीक है, फिर आज Yeah. के लिए बहुत हो गया। आई विल जस्ट सेंड द क्वेरीज सो दैट यू कैन आल्सो प्रैक्टिस। ठीक है, और टेबल तो ऑलरेडी है, यू गाइस हैव एम्प्लॉय डेटा, मैनेजर डेटा,
एंड टेम्परेचर और ये वाला सैलरी का जो था ना एम्प्लॉय डेटा में था, इसमें सैलरी ऐड कर लेना एक सैलरी वाला कॉलम। आई विल सेंड इट इन एक्सेल। ओके Okay. चलो कुछ भी क्वेश्चन है? we'll go through more practice on subqueries with joins, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस, और विंडोज फंक्शन थोड़ा कवर अप करेंगे, ठीक है? Okay. Yes. चलो ठीक है।